So students, we start Act 4, Scene 1, and this scene take place at the Court of Justice, where Duke is there, Antonio is there, Bassanio is there, Graciano is there, Salario is there, and this, believe me, this scene is very interesting, especially the speech given by Portia, and it could be the climax of the entire drama. Though it's not the end, generally we find the climax at the end, but here it's so interesting, and that it could be regarded as the climax of the entire drama. So we start with the speech of Duke, and though because it's a lengthy scene, so we have divided into two parts for your better understanding, and I can also explain in a better way. What is Antonio here? So he is asking whether Antonio is here or not, and Antonio replies that I am here, and Duke feels sorry that Antonio is there to defend himself. यहाँ पे Duke सॉरी फील कर रहा है क्योंकि एंटोनियो को खुद ही अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है. एंड एंटोनियो, I have heard your grace had taken great pains to qualify his rigorous course. I have heard that your grace, that you have taken a lot of trouble to moderate the harsh legal proceeding, to like modify the things. वो कह रहा मुझे मालूम पड़ा है कि आपने बहुत परेशानी उठाई है उस शायलॉक का दिल को थोड़ा सा कोमल बनाने के लिए, और ताकि इस केस को थोड़ा सा नर्म बनाने के लिए. बट सिंस ही स्टैंड्स एब्यूरेट मीन एडमेंट, बहुत जिद्दी हो गया शायलॉक वहां पे, बिकॉज शायलॉक को तो मौका चाहिए था अपनी बदला लेने का. दैट्स व्हाई, एंड दैट नो लॉफुल मीन्स कैन कैरी मी, एंड नो अदर प्रोसीडिंग कैन that no lawful means can carry me out of his envy reach. So there is no other means that could save me of his, and because of the enmity that we both have in between us, और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो मैं उसकी दुश्मनी से बच जाऊं. I do oppose my patient to his fury, so I am ready to suffer. I am ready to suffer, and I am ready to suffer his anger with patience. मैं धैर्यता पूर्वक उसके क्रोध का सामना करूंगा. With the quietness of spirit, quietness से with a calm heart, मैं बिल्कुल चुपचाप उसके गुस्से का सामना करूंगा. The very tyranny and rage of his, the cruelty and his anger. I am ready to face his cruelty and anger. मैं उसके अंदर जितने भी मेरे प्रति नफरत है और जितना भी उसके अंदर क्रूरता है, मैं उसका सामना करूंगा. ये एंटनी कह रहा. ड्यूक, गो वन एंड कॉल द ज्यू इनटू द कोर्ट. अब वो ऑर्डर देता है कि ज्यू को लाया जाए. ज्यू कौन है? शायलॉक. मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर योर फेस. शायलॉक, द वर्ल्ड थिंक्स एंड आई थिंक सो टू that thou but leads this fashion means keeping the appearance of thy malice to the last hour of act. So here the Duke is saying, remember Sherlock, the world think and even I think that you will keep this appearance of cruelty till the last hour, till the last minute of this trial. अब यहाँ पे वो कह रहा है मुझे, जैसे कि दुनिया को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि तुम अपने अंदर जो तुमने अपने को इतना क्रूर बना रखा है, याद रखना इस मुकदमे के आखिर तक तुम इस क्रूरता को बनाए रखना. अब ये एक छोटा सा मैसेज है कि कुछ होने वाला है. क्या होने वाला? विल कम टू नो वेरी सून. आई हैव पोजेस योर ग्रेस ऑफ व्हाट आई सपोज. सो आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म, दिस इज शायलॉक हु इज स्पीकिंग. ही इज सेइंग आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म यू दैट व्हाट माय इंटेंशंस आर. मैं क्या करने वाला हूं आपको पता है. एंड बाय आ होली सैबथ. सो होली सैबथ मीन द जूइश ओथ, एक कसम है जो शपथ जो जूस के लोग खाते हैं. Have I sworn to have the due and forfeit of my bond. So I am ready to have the penalty. The penalty he is going to pay. I am ready to accept the penalty. If you deny it, let the danger light upon your charter. Charter is something in writing. And if you deny me the justice, अगर आप मुझे justice नहीं देते हैं, तो जो आपने जितना भी आपके चार्टर में लिखा हुआ, जितना भी जैसे चार्टर लिखा जाता है, कोई भी गवर्नमेंट बनती है या कोई भी नई शुरुआत होती है, तो उसका चार्टर होता है जो पहले दिन प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं. अब इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव मी जस्टिस बिकॉज आई फील दैट यू आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एंटोनियो,
उसको लगता है ड्यूक भी, ना केवल ड्यूक बल्कि वेनिस का हर संभ्रांत और एक प्रतिष्ठित आदमी उसका ही पक्ष ले रहा है एंटोनियो का। व्हाट्स द रीजन? क्योंकि एंटोनियो एक अच्छा व्यक्ति है, एंटोनियो इज नोन फॉर हिज गुडनेस। एंड योर सिटीज फ्रीडम यू विल ask me whether I rather choose to have a weight of Carian flesh than to receive 3000 ducats. Weight means a quantity, Carian is rotten. So if you are ready to give me judgment, if you are not ready to give me justice, अगर आप मेरे साथ न्याय नहीं करते हैं तो आपके जो सारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, जो आपके चार्टर की है, जो आपके रूल है वेनिस में, वो सारा बेकार हो जाएगा। और अगर आप मुझसे पूछते, if you are going to ask me to have a weight of Carian flesh than to receive 3000 ducats, कि if I have to make a choice between like a quantity of a flesh of Antonio and 3000 ducats, I will not answer that. I'm not going to answer. मैं आपको जवाब नहीं दूंगा कि मुझे क्या लूंगा। I'm not going to answer you what I am going to choose. अगर मुझे 3000 ducats मिलते हैं या उसका एक pound of flesh मिलता है, I'm not going to answer right now. अब फ्लैश क्या है, क्योंकि उस 3 महीने गुजर चुके हैं, अब वो तो पैसे लौटा नहीं पाया। बट से इट इज ह्यूमर, इज इट आंसर? और एंड आई फैंसी वो, एंड व्हाई शुड आई आंसर इट? आई डोंट नो एनी रीजन। व्हाई शुड आई आंसर? मैं क्यों जवाब दूं उस बात का? दैट इफ माई हाउस बी ट्रबल विद अ रैट एंड आई बी प्लीज टू गिव 10,000 ducats टू हैव इट बेन, एंड आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दैट इफ माई हाउस इज बीन ट्रबल्ड, रैट्स ट्रबल माई हाउस, and if I poison the rats, or I spend 10,000 ducats to poison the rat, why should I answer? मैं क्यों जवाब दूं? मैं इन बातों का जवाब नहीं देना चाहता। ये तो अब आप मुकदमा स्टार्ट करिए, तब हम देखते हैं हमें जवाब देना है कि नहीं। Bassanio, this is no answer, thou unfeeling man. That this is not a satisfactory answer. Unfeeling man means the person without any feeling. You are a person without any feeling, and this is not the answer. To excuse the current of thy cruelty, this is not the answer to justify your cruelty. ये आप अपनी जो आपके अंदर जो क्रूरता है उसको जस्टिफाई करने वाला आंसर नहीं है। आपके अंदर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप बहुत क्रूर है, आप बहुत ही सेल्फिश आदमी है। Shylock, I am not born to please thy with my answer. I am not here to please you. तो he answers Bassanio कि मैं यहाँ पे आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूँ। Antonio, I pray you think you question with the Jew. So he said that I request you, Bassanio, that remember you are arguing with a Jew and you cannot ever win this argument. तुम एक ज्यू के साथ बहस कर रहे हो और तुम ये बहस कभी जीत नहीं पाओगे। ये एंटोनियो बसानियो को सलाह देता है। You may as well go stand upon the beach and bid the main flood bait his usual flight. Flood, you know, the ocean current, and you can go to the ocean and ask the ocean current to reduce their height. आप समुद्र के पास जाइए और अब से उनसे कहिए अपनी लहरों की ऊंचाई को कम करिए, तो हो सकता है वो आपकी बात मान जाए। तो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ कंपैरिजन मेड बिटवीन द अदर वर्ल्डली थिंग्स एंड शायलॉक। वहां पर कंपैरिजन है, समानता है जो वो देख रहा है दूसरी चीजों में और शायलॉक के बीच में। सो व्हाट वी कॉल दिस, ये क्या है? ये बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहना। You may as well use question with the wolf why he had made the Eve bleed for the lamb, and you can also ask wolf that why he robs mother Eve, and that makes the lamb. Mother Eve means the female sheep, and why you rob female sheep that weeps for her lamb. So why you do this thing? आप एक wolf से, एक भेड़िए से पूछ सकते हैं कि वो उस माँ को बच्चे से अलग क्यों कर देता है, शिकार क्यों कर लेता है उस शीप का जो अपने बच्चे के लिए रोती है। वो तुम्हें जवाब दे देगी, लेकिन ये आदमी तुम्हें जवाब नहीं देगा। यू मे एज वेल डू एनीथिंग मोस्ट हार्ड एज सीक टू सॉफ्टन दैट, एंड तुम कोई भी दुनिया की चीजों को जो कठोर से कठोर चीज को सॉफ्ट कर सकते हो, लेकिन शायलॉक के दिल को कमजोर नहीं कर सकते हो। हिज ज्यूइश हार्ट देयरफॉर आई डू बिसीच यू, सो आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, मेक नो मोर ऑफर्स, यूज नो फर्दर मीन्स। अब कोई ऑफर मत दो और कोई इससे तुम और निवेदन मत करो, इसका कोई हल नहीं निकलना। ड्यूक, हाउ शैल दाउ होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन,
And Duke is saying, if you show no mercy, that how can you hope for, Duke is saying that how can you hope for mercy when you are not ready to have mercy on others? जब तुम दूसरों के ऊपर दया नहीं दिखा सकते हो तो तुम अपने लिए दया की उम्मीद कैसे कर सकते हो? Shylock, what judgment shall I dread? तो what punishment should I be afraid of? मैं किस punishment से डरूं? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है. Doing no wrong, I have done nothing wrong. मैंने तो कुछ गलत नहीं किया. You have among you many a purchased slave. जहां तक आपकी बात है, वो ड्यूक से कह रहा है, you have purchased a number of slaves. आपने बहुत सारे गुलाम खरीदे हुए हैं. Which like your asses and your dogs and mules, जो आपके गधों की तरह, डॉग्स की तरह और खच्चरों की तरह काम करते हैं आपके लिए. वो इंसान है. क्या आपने कभी उनको इंसान माना? Have you ever considered them as a human being? You use in abject means your means to do your work, and in slavish part you make them work like slaves. You have purchased so many slaves and you make them work like animals. Have you ever felt pity on them? क्या आपने कभी उन पे दया करी है? आप मुझसे दया की बात कर रहे हैं, आप मुझसे दया की उम्मीद कर रहे हैं. Because you bought them, and the reason you have bought them, आपने उनको खरीदा है, that's why you don't feel pity on them. Shall I say to you, let them be free? And if I ask you to free them, free all your slaves, marry them to your heirs, marry them to your children. अगर मैं कहूँ आप सारे slaves को आज़ाद छोड़ दें और अपने बच्चों की शादियां उनसे कर दें, तो क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे ना. Why sweat they under burden? They sweat under the burden they carry. वो पसीने पसीने हो जाते हैं जब वो भार उठाते हैं. Let their beds be made as soft as yours, and let their palates be seasoned with such viands. Palates means taste, season means please them, viand means good food. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि let their beds be made as soft as your beds. उनके बिस्तर भी उतने आरामदायक बना दिए, नर्म बना दीजिए जितने आपके बेड है, और उनके प्लेट में भी वही शानदार खाना डाल दीजिए जो आप खाते हैं. क्या आप ऐसा करेंगे? आप ऐसा नहीं करेंगे. Because the slaves are yours, and so do I answer you. The pound of flesh which I demand of him is dearly bought. It's mine. I will have it. और आप मना कर देंगे क्योंकि आपने उन स्लेव्स को खरीदा है. इसलिए जो पॉन्ड ऑफ फ्लैश जो आप लोग उस पर दबाव डाल रहे हैं, पीपल आर फोर्सिंग मी अगेन एंड अगेन दैट आई शुड हैव सम मर्सी ऑन दैट पर्सन, कि मैं उस पर्सन के लिए कोई दया दिखाऊं. तो मैंने वो खरीदा है, मैंने 3000 डकट्स उधार दिए थे जो मुझे नहीं मिले. अब वो फ्लैश मेरा है, मैं जैसे चाहूं उसको निकालूं और जैसे चाहूं उसका यूज करूं. एंड इफ यू डिनाई मी, फाई अपॉन योर लॉज, एंड इफ यू से नो टू मी, इफ यू डिनाई मी ऑफ द जस्टिस, अगर आप मुझे न्याय नहीं देंगे तो शेम है, शर्म है आपके कानून पे. देयर इज नो फोर्स इन द डिक्री ऑफ वेनिस, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है वेनिस में जो उसको बचा सके. आई स्टैंड फॉर जजमेंट एंड आई स्टैंड हियर फॉर जजमेंट, मैं इंसाफ के लिए आया हूं. आंसर शैल आई हैव इट, और मुझे जवाब दीजिए कि मुझे जजमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. यहां ये शो कर रहा है कि ही इज वेरी फर्म, ही इज वेरी एडमेंट, वो बहुत जिद्दी हो गया है, उसको अपना बदला लेना है. Duke, upon my power, I may dismiss the court. With my authorities, I am going to dismiss the court, unless Bellario, a learned doctor, doctor means a doctor of law. Bellario जो एक learned doctor है, whom I have sent for to determine this, come here today, whom I have invited to have to decide on the nature of the case, decide the case. I have called Dr. Bellario. तो कह रहा है मैं तब तक वेट कर रहा हूँ डॉक्टर बेलेरियो का, जिनको मैंने बुलाया है इस केस के लिए कि क्या करना चाहिए. एंटर नेरिसा ड्रेस्ड लाइक अ लॉयर्स क्लर्क. उसी समय नेरिसा आती है जो लॉयर के क्लर्क की तरह ड्रेसअप होके आती है. याद होगा आपको, नेरिसा पोर्शिया ने एक प्लान बनाया था. नेरिसा उसकी अटेंडेंट है और पोर्शिया जो वो एक लॉयर बन के आई है. Duke, come you from Padua, from Bellario? Have you come from Padua? Padua is a place in Italy, from Bellario. From both Padua and Bellario. Bellario greets you, your grace. So Bellario has wished you. She presents a letter. In fact, here she is he. वो letter देता है, and we'll consider her as him only. उस letter में क्या लिखा होता है?
This letter from Bellario does commend a young and learned doctor to our court. This letter recommends a young and dynamic, a learned doctor, again a doctor of law, to our court. ये इस पत्र में लिखा है कि एक युवा और बहुत ही प्रख्यात योग्य डॉक्टर जो है, जो कानून का डॉक्टर है, जो वकील है, वो इस कोर्ट में है। वो कहाँ पे है? नेरिसा, he attended here hard by, he is waiting just outside, वो बाहर वेट कर रहा है ये जानने के लिए क्या उसको अंदर आने की इजाजत है कि नहीं है। With all my heart, it's the Duke who's speaking, with all my heart, some 3 or 4 of you, to his men, he is talking to his men, 3-4 लोग जाओ उसको पूरे सम्मान के साथ लेके आओ यहाँ पे। किसको? जो डॉक्टर बाहर वेट कर रहा है, जिसको रिकमेंड किया है बेलारियो ने। एंटर पोर्शिया ड्रेस लाइक अ डॉक्टर ऑफ लॉ। अब पोर्शिया अंदर आती, वो भी ड्रेसअप हुई है, इन्होंने अपना भेष बदल रखा है। दे हैव डिस्गाइज्ड देमसेल्फ एज मेल्स। गिव मी योर हैंड, कम यू फ्रॉम ओल्ड बेलारियो। सो ड्यूक कहता मुझे अपना हाथ दो, तुम्हें लगता हो उन बुजुर्ग बेलारियो ने यहाँ पे भेजा है। आई डिड माई लॉर्ड, यस उन्होंने ही मुझे भेजा है। पोर्शिया हु आंसर्स, यू आर वेलकम, टेक योर प्लेस, तुम्हारा स्वागत है, तुम अपनी जगह लो। आर यू एक्वेंटेड विद द डिफरेंस दैट होल्ड दिस प्रेजेंट क्वेश्चन इन द कोर्ट? आर यू अवेयर ऑफ द डिस्प्यूट? तुम्हें क्या मालूम है क्या झगड़ा है जिस पे तुम्हें फैसला लेना है, तुम्हें जिस पे डिस्कशन करना है? वो पोर्शिया से पूछता है। आई एम इन्फॉर्म थारली ऑफ द कॉज, मुझे पूरी तरह से पता है कि मुझे क्या बात है, मुझे क्या फैसला करना है। विच इज द मर्चेंट हियर एंड विच इज द ज्यू? यहाँ पे कौन मर्चेंट है और कौन ज्यू है? ज्यू, एंटोनियो एंड ओल्ड शैलॉक, बोथ स्टैंड फॉर, बोथ कम फॉरवर्ड, वो दोनों को बुलाता है कि सामने खड़े हो। इज योर नेम शैलॉक? पोर्शिया पूछती है तुम्हारा नाम शैलॉक है? शैलॉक कहता है यस माई नेम इज शैलॉक। Of a strange nature is the suit you follow. The case which you have brought in the court is really very strange. तो तुम ये अदालत में ये केस लाए हो, बहुत ही अजीबो गरीब है। Yet it's in such rule that the Venetian rule cannot impugn. Impugn means oppose. तुम जो रूल लाए हो भले स्ट्रेंज हो, जो तुम मुकदमा लाए हो स्ट्रेंज हो, लेकिन वेनिस का जो लॉ है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं हो सकता अगर तुम इस केस को आगे बढ़ाते हो, क्योंकि तुम अपनी बात पे सही हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। वो एंटोनियो की तरफ देखती, कहती क्या तुम्हारा जीवन खतरे में है? सो ही सेज, एंटोनियो कहता हाँ ऐसा कि शैलॉक कह रहा। डू यू कन्फेस द बॉन्ड? डू यू एडमिट द बॉन्ड? क्या तुम बॉन्ड तो स्वीकार करते हो, तुमने बॉन्ड साइन किया था? वो उससे पूछते एंटोनियो से, एंटोनियो कहता हाँ मैंने किया था। पोर्शिया, देन मस्ट द ज्यू बी मर्सीफुल, फिर तो ज्यू, अब एक ही रास्ता बचता है, लेट द ज्यू बी मर्सीफुल, कि ज्यू तुम पे दया कर दे। ऑन व्हाट कंपल्शन मस्ट, ऑन व्हाट ग्राउंड्स मस्ट आई, किस ग्राउंड पे, किस वजह से मैं इस पे दया कर दूं, मुझे बताइए। पोर्शिया, अब ये स्पीच पोर्शिया की जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है पोर्शिया की, जो उसने दी है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती है, स्पीच ऑफ मर्सी। एंड बी वेरी अटेंटिव, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट फोर्स, यू कैन नॉट फोर्स मर्सी ऑन एनीवन। अगर किसी को दया करनी है तो अपने मन से करे, जबरदस्ती मैं तुमसे नहीं कह सकती इस पे दया करो। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, मर्सी इज अ सॉर्ट ऑफ अ जेंटल रेन, एक बहुत ही अच्छी रेन है जो हेवन से गिरी है, ये ड्रॉपलेट्स हैं जो हेवन से गिर रहे हैं। अपॉन द प्लेस बीनीथ, इन नीचे की अर्थ पे ये जो ड्रॉप्स है जो ईश्वर ने डाला है वो मर्सी है। अब रेन देखिए, रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। रेन, व्हाट इज रेन? इनफैक्ट रेन इज समथिंग दैट व्हाई हैज शी कंपेयर्ड दिस मर्सी विद रेन? रेन इज समथिंग दैट मेक्स एवरीवन फील हैप्पी, इजंट इट? वो हर चीज को व्यक्ति खुश कर देती है। व्हेन इट्स वेरी हॉट, व्हेन इट्स वेरी हॉट, तो हम लोग जब बहुत गर्मी हो तो किस चीज का वेट करते हैं? व्हाट वी वेट फॉर? वी वेट फॉर द रेन टू फॉल डाउन, okay? And when rain descends, when it comes on earth, it makes everything elaborated, it makes everything elated, वो हर चीज को खुश कर देती है, elated in fact, and makes everyone feel happy, either plants, animals,
और ह्यूमन बींग्स, हर चीज खुश हो जाती है पानी बरसते ही। वैसे ही मर्सी है, जो देता है, जो किसी पे दया करता है वो भी खुश होता है, जिस पे दया की जाती है दैट्स ऑब्वियस, वो तो खुश होता ही। वैसे ही रेन का रोल है, वो जब गिरती है तो वो खुद भी खुश होती है क्योंकि वो दूसरों को खुशी दे रही है, और जहां जहां गिरती है हर जगह खुशियां फैल जाती। सूखी धरती खुश हो जाती है पानी के आते, पेड़ पौधे जो गर्मी से परेशान होते, रेनफॉल होती कब है? जब बहुत गर्मी पड़ती है। तो हर चीज जब गर्मी से बिल्कुल दहकने लगती है तो वी ऑल वेट फॉर रेन, एंड व्हेन इट रेन्स वी फील इलेटेड, वी फील हैप्पी, हम लोग बहुत खुश होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कंपैरिजन, दैट्स व्हाई शी हैज कंपेयर्ड मर्सी विद रेन, इसीलिए रेन के साथ मर्सी को कंपेयर किया गया। Upon the place it is twice blessed, as I told you, it is twice blessed, it bless him that gives and him that take। जो मर्सी देता है, जो मर्सी दिखाता है, दया करता है, वो भी खुश होता है, और जिस पे दया की जाती है वो भी खुश होता है। this mightiest in the mightiest, it is the greatest virtue in the greatest power। एक मजबूत इंसान के अंदर सबसे मजबूत शक्ति जो होती है वो होती है मर्सी की। That it becomes the throne monarch better than his crown। So एक जो राजा होता है, the king is known by the crown he wears। उस क्राउन की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है उस राजा की जिसके अंदर ये मर्सी होती है, जिसके अंदर दया होती है, जो अपने सब्जेक्ट्स को, जो अपनी प्रजा को प्यार करता है, जो उन पे दया दिखाता है, उसकी वैल्यू होती है। क्राउन तो किसी के, क्राउन तो नॉन लिविंग थिंग है, उसकी वैल्यू नहीं होती, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना हो। वैल्यू राजा की है जिसके अंदर ये दया होती है। His scriptures show the force of temporal power, the symbol of royalty। जो उसके अंदर एक क्वालिटी होती है रॉयल्टी की, वो उसके पावर को दिखाती है। The attribute, attribute means quality, to aim, aim is to inspire, and majesty wherein doth sit, doth sit means on which depends the dread and fear of kings। तो उसकी क्वालिटी, जो उसके अंदर उसका नेचर होता है, जो उसका कैरेक्टर होता है, वो दिखाता, उससे प्रजा उसको प्यार करती है और उससे डरती है, उसके मुकुट से नहीं डरती है, उसके अंदर जो मर्सी होती है, जो उसके दिल में होती है। बट मर्सी इज अबव द स्क्रिप्चर स्वे, मर्सी इज अबव एवरीथिंग। मर्सी हर चीज से ऊंची है, दया हर चीज से ऊंची होती है, राजा महाराजा सबसे ऊंची होती है। इट इज एंथ्रोन इन द हार्ट ऑफ द किंग। एंथ्रोन मीन्स वो राजा, एंथ्रोन का वैसे तो मतलब होता है टू पुट ऑन द थ्रोन, वो ही राजा को थ्रोन पे बैठाती है, वही उसके दिल में राज करती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। द क्वालिटी इज, इफ यू हैव द क्वालिटी, यू हैव द सेम क्वालिटी विच गॉड पोजेस। भगवान के पास भी, ईश्वर के पास भी यही क्वालिटी होती है। क्यों? ईश्वर हम सबको हमारी हर गलती पे माफ करता है। गॉड फॉरगिव्स अस फॉर ऑल आवर फॉल्ट्स। वी डू a number of mistakes in our time, numerous mistakes. Every day we make a number of mistakes, and every time we say sorry to God, and every time He forgives us, isn't it? हम लोग कितनी बार दूसरों को माफ करते हैं, हम दूसरे की छोटी सी गलती पे उसको माफ नहीं करते, उसको 100 बार सॉरी बुलवाते हैं, isn't it? हम लोग ऐसा क्या नहीं करते हैं? कौन सी इतनी बड़ी गलती है, इंसान से बड़ी गलती कौन सी है कि हम उस इंसान से दूर हो जाते हैं लेकिन उसकी गलती माफ नहीं करते हैं, और हम लोग भगवान से उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी गलती माफ कर दे जाए, isn't it? What we feel, what we think that God should forgive us for each and every mistake we do, but we are not ready to forget others। हम लोग दूसरों को किसी भी कॉस्ट पे माफ नहीं करते हैं, किसी भी कीमत पे माफ नहीं करते हैं। उनकी हर गलती पे हम लोग उनको आंखें दिखाते हैं, उन पे गुस्सा होते हैं, उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है तो हम चाहते हैं ईश्वर हमारी बड़ी सी बड़ी गलती को माफ कर दे। क्या ऐसा हो सकता है? तो हमें भी तो वही ईश्वर से उम्मीद करनी चाहिए जो हम दूसरों के लिए करते हैं। That's what's written। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया, इट्स एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, इट्स अ क्वालिटी ऑफ गॉड। मर्सी इज a quality, in fact it is again a comparison has been made here, and it's an attribute to God himself। वो ईश्वर के बराबर एक चीज है। An earthly power doth then show like God when mercy seasons justice। तो earthly power, the power of
earthly power जिस समय ये उम्मीद करती हैं, सीजन्स मीन सॉफ्टन, earthly power जो है उम्मीद करती हैं कि जब जस्टिस हो, जब earthly power कौन, जो हम लोग इंसान हैं, जब जस्टिस हो तो हम पे दया करी जाए। बड़े से बड़ा अपराधी यही कहता है कि मैंने जो भी अपराध किया, जब फैसला ले तो बहुत और बातों का ध्यान रखने, मुझ पे दया करे। Therefore, Jew, thou justice by the plea, consider this. So, Jew, remember, justice by the plea. If you take your own stand on justice, अगर आप अपना stand ले रहे हैं justice पे, consider this, that in the course of justice, none of us should see salvation. And because when we want justice from God, अगर भगवान हम सबको हमारी गलतियों पे वैसे ही सजा देने लगे जैसे कि एक इंसान दूसरे इंसान को देता है, तो हम में से किसी को सैल्वेशन नहीं मिलेगा। नन ऑफ अस विल गेट सैल्वेशन, मीन्स मोक्ष नहीं मिलेगा, हम लोग को शांति नहीं मिलेगी, हम सब लोग इस नरक में ही जाएंगे, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं गलती करी होगी, हमने कहीं ना कहीं झूठ बोला होगा, हमने कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखाया होगा। और अगर ईश्वर इन सब बातों को इकट्ठा कर ले, एंड इफ इज गोइंग टू गिव जजमेंट ऑन दीज थिंग्स, वो हम लोग को कभी भी माफ नहीं करेगा, जैसे हम दूसरों को माफ नहीं करते हैं। जैसे कि तुम शायलॉक इस पे दया दिखाने को तैयार नहीं हो, तुमने भी बहुत गलती करी होंगी। एंड इफ गॉड स्टार्ट पनिशिंग यू फॉर योर फॉल्ट्स, यू विल नेवर गेट सैल्वेशन, तो तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। एंड सेम प्रेयर डॉट टीच अस all to render, and in return, as I said, in return for our misdeed, God is going to punish us for our misdeeds, then the deeds of mercy, और हम लोग को अगर बदले में ईश्वर वैसे ही सजा देना स्टार्ट कर दे जैसे कि हमारी गलती होती है। I have spoke thus much to mitigate, means I have spoken so much to change, to soften the justice of thy plea. मैंने इतना इसलिए बोल लिया कि मैं तुम्हारे दिल को कुछ नर्म करना चाहती हूँ, ताकि तुम जो न्याय मांग रहे हो तुम वो गलत नहीं हो, लेकिन किसी पे दया करना आपका सबसे बड़ा धर्म है। विच इफ दाउ फॉलो दिस स्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वेनिस मस्ट नीड्स गिव सेंटेंस अगेंस्ट द मर्चेंट। सो आई हैव सेड ऑल दिस टू सॉफ्टन योर डिमांड फॉर स्ट्रिक्ट जस्टिस, बिकॉज यू आर अगेन एंड अगेन आस्किंग फॉर अ स्ट्रिक्ट जस्टिस। बट इफ यू स्टिल प्रेस दिस डिमांड, इफ यू keep on pressing this demand, the impartial Venetian court is bound to give its sentence against the merchant Antonio. Agar if you are like forcing us again and again, persuading us again and again that you will go for the strict law, definitely this person is going to have a harsh sentence, a harsh punishment. Who is this person? Antonio. तो अगर कहते तुम मजबूर कर रहे हो कोर्ट को कि वो तुम्हारे ही हक में फैसला ले, तो इस एंटोनियो को बहुत बड़ी सजा मिलेगी। शालो माई डीड अपॉन माई हेड आई क्रेव द लॉ। सो एंटोनियो से आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द कॉन्सिक्वेंस, जो भी मेरे इस फैसले का बुरा प्रभाव पड़ेगा या जो भी मुझे श्राप लगेगा, मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। द पेनल्टी एंड फॉरफिट ऑफ माई बॉन्ड, लेकिन मैं पेनाल्टी लूंगा मेरा बॉन्ड जो इसने तोड़ा है, जो मुझे इसने समय से रकम वापस नहीं करी है। तो ये दिखाता है उसके दिल में कितनी नफरत थी एंटोनियो के लिए और वो कितना बेताब था इस मौके को भुनाने के लिए। दिस शो द हेट्रेड ही was having in his heart for Antonio, and he was waiting to catch this opportunity, to grab the opportunity with both of his hands. It was in fact a golden opportunity for him to take back revenge, और वो अपना बदला लेना चाहता था। The second half of the leftover chapter we'll do in the second video. Till then, goodbye. Do subscribe the channel, ask your friends to subscribe the channel, share this channel to your friends, and if you we have in fact I have made a lot of videos from both CBSE and ICSE board from class 9 to 12. You can subscribe the channel and you can find what all is important for you. Till then, thank you, goodbye. Welcome back class 10 children of ICSE board. As I have already told you that Act 4 Scene 1 is
quite lengthy, so I'll do it in two parts. The previous video, in the previous video we have done up till the speech of Portia, and where Shylock said that whatever the consequences would be, he is ready to take the penalty and the bond. So now we move ahead of that. So now it's Bassanio who's speaking. Yes, I tender, I offer it for him in the court. Here Bassanio is saying he is ready to offer him twice the sum, double पैसा देना चाहता है. If that will not suffice means this, that is not enough. अगर उतना पैसा भी, double पैसा भी is not enough for Shylock, I will be bound to pay it 10 times. I am ready to pay it in 10 times. मैं उसको 10 गुना पैसा देने को तैयार हूँ. On forfeit of my hand, and if that is also not important, I am ready to sacrifice my hands. मैं अपने हाथ दे सकता हूँ, मैं अपना head दे सकता हूँ. I am ready to give my heart as well. So this is something not practical. ये कहने का तरीका, it's a way of saying only. वो कह रहा है मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ. I am ready to sacrifice my life as well for my friend. And if this will not suffice, even this is not enough for him, it must appear that malice bears down truth. It's like it is that the hatred has overpowered the truth. उसकी जो नफरत है वो एक सच्चाई से ज़्यादा बढ़कर हो गई है. And I beseech you, I request you, rest once the law of your authority. So whom is he requesting? वो किसको request कर रहा है? He is requesting the duke. वो duke को request कर रहा है कि twist, change the laws. Once you change the laws, एक बार सारे laws को बदल दीजिए और किसी तरीके से evil doer को, इस व्यक्ति को जिसका नाम है शायलॉक, इसको पनिश करिए इसके गलत काम के लिए. Portia, it must not be, but Portia here she opposes. वो यहाँ पर विरोध कर रही है उस चीज़ का कि it must not be, there is no power in Venice that can alter a decree established. Decree means a law. So there is no power that can change the current law. कोई पावर नहीं है वेनिस में. इवन राजा भी उस लॉ को नहीं बदल सकता जो बहुत सालों से चला आ रहा है. It will be recorded for precedent. Precedent is a sort of an act that is done in past and which is always recorded to lay example for the others. तो वो कह रही है कि ये एक एग्जाम्पल बनेगा, रिकॉर्ड होगा, इसको आगे की जनरेशन पढ़ेंगी, सुनेंगी, समझेंगी, तो वो सोचेंगी कि द ड्यूक हैड डन रॉन्ग बिकॉज ही वॉज पार्शियल टूवर्ड्स एंटोनियो. उसने एंटोनियो के लिए पार्शियलिटी करी, इसलिए ऐसा कर दिया, रूल बदल दिया. तो नोबडी कैन डू दैट. अ डैनियल कम टू जज, अ डैनियल कम टू जजमेंट. अब शायलॉक बिकम्स वेरी हैप्पी. वो जोर चल रहा था, डैनियल हैज कम टू जजमेंट. डैनियल कौन है? डैनियल वॉज अ वाइज एंड इम्पार्शियल जज. तो वो कह रहा बहुत ही वाइज और इम्पार्शियल जज है, जो जूइश जज था वो आ गया है. अब यहाँ पे गौर करने वाली आपने बात देखी, वो हर चीज़ में अपने धर्म से रिलेटेड लोगों के नाम बोलता है. तो हम लोग उसको नॉन बिलीवर कैसे कर सकते हैं? वो अपने धर्म पे तो लाइक ही वॉज अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ हिज ओन रिलीजन. वो अपने रिलीजन पे तो वो पूरा एक कट्टर था वो अपने रिलीजन के लिए. Portia, why this bond is forfeit? Why this bond is? It is clear that the amount of the bond has not been paid. वो कह रही है ये तो क्लियर हो गया, the amount is not paid. And lawfully by this the Jew may claim a pound of flesh, and you are free to claim a pound of flesh. अब तुम एक pound of flesh इसकी बॉडी से निकाल सकते हो. To be by him cut off nearest the merchant's heart. और merchant means एंटोनियो के हार्ट के पास से you are ready, and even the law permits you to take out a pound of flesh. आपको कानून आपका साथ दे रहा है. Be merciful, and still she requests Shylock. वहाँ पे भी Shylock से रिक्वेस्ट करे थोड़ी सी दया दिखाओ, 3 गुना पैसा ले लो, टेक थ्राइस द मनी एंड छोड़ दो बॉन्ड को. लाइक अगेन एंड अगेन वो ट्राई कर रही किसी तरह से मामला ऐसे ही समाप्त हो जाए. पर लेकिन जब आदमी अंधा हो जाता है अपने गुस्से और नफरत में, तो उसे कुछ नहीं सूझता है. और वो पहले कह ही चुका है, मैं कोई भी कंसिक्वेंस, कोई भी रिजल्ट है, आई एम रेडी. When it is paid according to the tenor, tenor means terms, this is Shylock who is speaking. It does appear you are worthy judge. अगर ये टर्म्स के हिसाब से पे कर दिया जाता है तो टपियस आप बहुत ही अच्छे और विद्वान जज हैं. You know the law, your exposition या interpretation, you know the law very well. आपको लॉ की अच्छी जानकारी है. Had been most sound and you have been most sound. This law is very sound. बहुत ही उसकी गहरी पैठ है. I charge you by the law. Whereof you are well deserving pillar, and because you are a very well supporter, he feel that he is supporting, the lawyer is supporting him. Proceed to judgment, and I request you to go for judgment.
By my soul I swear there is no power in the tongue of a man to alter me, and I swear there is no one who can change my mind, who can alter me, change me by the power in the tongue of a man, like by speaking or by, there is no one who can persuade me or convince me to change my whatever decision I have taken. I stay there on my bond, so I stay with my bond. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपनी बातों से मेरे इस फैसले को बदल दे, मैं अपने जो बॉन्ड है मैं उसी के अनुसार काम करूंगा. Portia, well, why then? Well then, just it is, you must prepare your bosom for his chest. Now she is talking to Antonio. वो कह रही है अब अपना आप सीना तैयार कर लीजिए, अपनी छाती तैयार कर लीजिए, वो आपके हार्ट के पास से चूंकि वो लेगा, फ्लैश लेगा अपना, और तुम अपना चाकू रेडी कर लो. ओ नोबल जज शार्लॉक, ओ एक्सलेंट यंग मैन. तो यहाँ ही इज प्रेजिंग, ही इज हैप्पी. वो उसको कह रहा है कि तुम बहुत ही बड़े जज हो, बहुत ही अच्छा तुम्हारा जजमेंट है. चलो. Portia, it is so are there balance here to weight the flesh. Now she has taken out even a minute things out of that bond. Okay, so this shows that, remember, she was not a lawyer, and remember she is very intelligent and very clever. वो कहती है कि आपने तराजू का प्रबंध कर लिया. शार्लॉक, आई हैव देम रेडी. कहता हाँ वो तैयार है. Have by some surgeon, Shylock, on your charge, and you can call a surgeon also, and you can pay that surgeon to stop his wound, because when you cut when you take out the flesh, it's going to bleed, and this bleed could result in his death. कहते तुम किसी सर्जन का वो कर लो, अगर से खून निकलेगा तो कोई सर्जन होना चाहिए उसका खून रोक ले, नहीं तो मर जाएगा. It is not nominated in the bond. Shylock is so like you can say he was really स्टोन हार्टेड पर्सन. वो कह रहा है कि नहीं नहीं, तो बॉन्ड में लिखा नहीं, मैं क्यों अप्लाई करूं. इट इज़ नॉट एक्सप्रेस, बट वॉट ऑफ दैट. वो कहती है एक्सप्रेस नहीं है, बट यू कैन डू इट, लाइक डू इट फॉर चैरिटी, चैरिटी के लिए कर दो. आई कैन नॉट फाइंड, इट इज नॉट बॉन्ड. कहता आई कैन नॉट फाइंड एनी सर्जन बिकॉज इट इज नॉट इन द बॉन्ड. एंटोनियो, नाउ एंटोनियो स्पीकिंग, बट लिटिल, very little, I am armed and well prepared. So I am ready and well prepared. Give me your hand, Bassanio. He asked his friend's hand. अपने दोस्त का हाथ मांगता है. Farewell, you well. अलविदा दोस्त. Grieve not that I am fallen to this. To this means I have reduced to this position. I have come at this point for you. Don't think that I have come met this situation because of you. ये मत सोचना मैं situation में तुम्हारे कारण आ गया हूँ. For herein fortune shows herself more kind than in custom. And here I find the fortune is more merciful towards me. मुझे लगता है किस्मत मेरे पर ज़्यादा मेहरबान है. It is still her to let the rich man outlive his wealth. और आज वो एक आदमी जो बर्बाद हो रहा है, उसका पैसा सब बर्बाद हो, जहाज सारे बर्बाद हो गए हैं, वो गरीब हो गया है इस तरह से, उस आदमी को अपनी बिल्कुल धसी हुई आंखों से और चेहरे पे झुर्रियों के साथ जीने को मजबूर नहीं कर रही. मुझे मौत मिल रही है आज. मीन्स आज मैं पूरा एक तरह दिवालिया हो चुका हूँ और ऊपर वाले की दया से आज ही मेरे जीवन का आखिरी दिन है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है. मुझे कोई चिंता नहीं है. ईश्वर कहते दया है कि मैं आज ही के दिन मेरी लाइफ का एंड होने वाला है. तो ईश्वर मुझे गरीब और दिवालिया होकर रहने नहीं दे रहा. मैंने अपनी पूरी लाइफ शानदार तरीके से जी है, तो मुझे एक दिवालिया होकर रहने नहीं दे रहा ईश्वर. ये बहुत अच्छी बात है. Bassanio, Antonio, I am married to a wife which is as dear to me as life itself. So Bassanio is saying that I am married to a lady who is as close to me as you are. I love her as much as I love you. But life itself, my wife and all the world are not with me esteemed above thy life. But everything, my life, including my life, my wife and my world, that cannot be valued. Your life is more precious than, if I like calculate the life of mine, my wife and my whole world, still you have a higher rank. तुम्हारा जीवन इन सबसे ज़्यादा कीमती है. मेरी पत्नी, मेरा अपना जीवन और मेरी दुनिया. I would lose all, sacrifice all them here to this devil to deliver you. So I can sacrifice everything, my life, my wife and my world, if I can set you free from the clutches of this devil. और मैं सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, त्याग सकता हूँ, बलिदान कर सकता हूँ, अगर मुझे मैं इस डेविल से, शैतान के पंजों से तुम्हें मुक्त करा लूँ. ये बात सुन के पोर्शिया जो इस समय आपको याद होगा वो एक लॉयर के रूप में ड्रेस्ड अप है और वो बसानियो नहीं पहचान पाता, ये अपनी पत्नी के सामने ही बात कर रहा है.
Your wife would give you little thanks for that if she were by here to hear you make the offer. And she says कि तुम्हारी वाइफ ये सुन के शायद ही खुश होएगी कि तुम ऐसा ऑफर आज यहाँ पे दे रहे हो. Graciano, I have a wife whom I protest. मेरी भी शादी हुई है, मेरी भी पत्नी है. I love it. I would be she were in heaven. और मैं अगर आज वो मर गई होती और हेवन में होती तो शायद वो ऐसा कोई वो काम कर देती कि जिससे ये आदमी जो है इसको एक एंजल बना देती, इस क्यूरिश मैन को, जीव को, इस शैतान को फरिश्ता बना देती अगर वो मर के स्वर्ग में होती आज तो. शायलॉक को लग रहा था बेकार की बातें हो रही इतनी देर से. वो कहता है we truthful time, we are wasting time. I pray thee pursue sentence. I ask you to proceed the whatever the thing is, whatever we have to do. हम लोग को जो करना वो करें, हम लोग फालतू का समय व्यर्थ कर रहे हैं. Portia, tarry a little, wait a while. एक मिनट रुको. There is something else. कुछ और भी है यहाँ पे. This bond does give thee here no jot of blood. And in this bond it is written that not even a single drop of blood should shed while you take out the flesh from his body. The word expressly are, the word clearly states a pound of flesh. It's only a pound of flesh, not a single drop of blood. So how is this possible? How can a pound of flesh be without a drop of blood? Take then thy bond, take your bond, take thou thy pound of flesh. You can take a pound of flesh as well, but in the cutting, make sure while cutting the pound of flesh, if thou dost shed, if you do shed one drop of Christian blood, your land and goods are by the law of Venice confiscate. Means it will be taken away by the state government. अगर तुमने इसका, जब तुम ये याद रखो बॉन्ड में क्या लिखा है, तुम इसके शरीर से मांस का टुकड़ा तो निकाल लो, लेकिन उस एक बूंद खून की भी नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि इसमें पाउंड ऑफ फ्लेश लिखा है, मांस का टुकड़ा लिखा है, खून नहीं लिखा. अगर तुमने एक बूंद खून भी गिरा दिया तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी राज्य को, ड्यूक को मिल जाएगी. नाउ इट वॉज द टाइम फॉर ग्रेशियानो. अब ग्रेशियानो बहुत खुश हो जाता है. अपराइट जज, अभी तक उसको प्रेस कौन कर रहा था? शायलॉक कर रहा था. नाउ इट वॉज द टाइम फॉर ग्रेशियानो, अपराइट जज, मार्क ज्यू, लर्नड जज. कहता है कि बहुत ही लर्नड जज आया आज तो. इज दैट द लॉ? शायलॉक कहता है क्या ये कानून है? पोर्शिया, thyself, you yourself can see the act. तुम अपने आप देखो, बॉन्ड को पढ़ो. For as thou urgent justice, because you have put forward the request for an urgent justice, thou shalt have justice, and you will have justice more than you deserve, and you will have more justice than you deserve. तुम्हें जितना तुम डिजर्व करते हो उससे भी ज्यादा तुम्हें न्याय मिलेगा. Again, learned judge, Mark Jew, a learned judge. So who was it? It was Graciano again. Shylock, I take this offer. अब यहाँ पे Shylock डर जाता है, कहता है कि ऐसे कैसे मैं पॉन्ड ऑफ फ्लेश निकाल लूंगा बिना खून के बूंद के. वो डर जाता है, कहता है कि ठीक है, मुझे 3 गुना पैसा दे दो, मैं पैसा लेके जाने तैयार हूँ. बेसानियो भी पैसा देने को रेडी हो जाता है, बट पोर्शिया कहती नो. अभी तो जैसे आई टोल्ड इट्स अ क्लाइमेक्स, अभी तो चाहती थी इसको सबक सिखाया जाए Shylock को, जो इसने किया है. स्टॉप, सॉफ्ट में स्टॉप. The Jews shall have all justice, तुम्हें पूरा जस्टिस मिलेगा. सॉफ्ट, स्टॉप, नो हेस्ट, जल्दबाजी मत करो. Portia, therefore prepare thy to cut off the flesh. तुम अपना चाकू प्रिपेयर करो. You prepare your knife to cut off the flesh. Shed thou no blood, but remember you need not shed even a single drop of blood, nor cut thou less or more, and don't cut less or more. You need to cut only a pound of flesh, not more or less than it, but just a pound of flesh. If thou cut more or less, then just a pound, but so much as make it light or heavy in the substance. But remember, you don't have to cut more or less. It should be equal to even the fraction of it. Even the fraction of it should not be more or less, or of this, and not even a grain. Okay, it should not be more or less than even a grain. And then she corrects herself, she rectifies herself, and she says not even more than a hair. एक बाल के बराबर भी उसका वजन
ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो हाउ इज इट दैट पॉसिबल, उसके शरीर से वो कैसे तोल के कैसे निकाला जा सकता है, बाहर निकाल के वेट किया जा सकता, अंदर कैसे किया जाता। तो दिस शोज शी वाज क्वाइट लर्नेड, क्वाइट वाइज, फुल ऑफ विजडम। यहाँ पे बुद्धिमानी, पढ़ा लिखे से इतना मतलब नहीं है, बुद्धिमान होना आपको बहुत जरूरी, चतुर होना। A second Daniel. First Daniel, who said Shylock said that Daniel has come. Now it was Graciano's turn. He said that second Daniel has come. Now infidel. Infidel means a non-believer, जिसको विश्वास ना हो किसी पे। I have on the hip. I have you in my clutches. अब तुम फंसे हो चुंगल में। Give me my principal and let me go. अब यहाँ पे शायलॉक रेडी था कि उसको उसकी मूल रकम मिल जाए, केवल जो उसका एक्चुअल धन था 3000 डकेट्स, और वो वापस जाने को तैयार था। ही हैथ बेसानियो भी देने को तैयार था। ही हैथ रिफ्यूज इट इन द ओपन कोर्ट, लेकिन पोर्शिया कहती है उसने खुले दरबार में मना किया था, मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं अपना बॉन्ड ही लूंगा। तो अब उसको उसका बॉन्ड ही लेना पड़ेगा। शैल आई हैव नॉट बेयरली माई प्रिंसिपल। अब शायलॉक कहता है क्या मुझे मेरा केवल पैसा वापस नहीं मिल सकता, मूलधन। पोर्शिया, दाउ शैल हैव नथिंग बट द फॉरफीचर, कहती तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, केवल अब तुम्हें पर पेनाल्टी लगेगी। टू बी सो टेकन एट दाई पेरिल ज्यू, अब तुमने अपनी लाइफ रिस्क में डाल दी है। शायलॉक, व्हाई देन द डेविल गिव मी गुड ऑफ इट, आई विल स्टे नो लॉन्गर क्वेश्चन। तो कहता है सारा कुछ अब लेट एवरीथिंग गो टू एंटोनियो, सारा पैसा आप एंटोनियो दे दो और मुझे यहां से जाने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पोर्शिया, द लॉ टेरी ज्यू, टेरी मीन्स डोंट बी इन अ हरी, वेट फॉर अ व्हाइल। द लॉ हैथ येट अनदर होल्ड ऑन यू, तो वहां पर एक चार्ज और है, देयर इज अ वन मोर चार्ज ऑन यू। इट इज इनैक्टेड इन द लॉ ऑफ वेनिस, जो कि वेनिस के लॉ में लिखा है, इट इज लेड इन द लॉ ऑफ वेनिस। If it be proved against an alien, alien is a foreigner, if it is proved against an alien, a foreigner, in fact you are a foreigner, that by direct or indirect attempt, that by a foreigner directly or indirectly attempts to take the life of any citizen of Venice, एंटोनियो जो था वो वेनिस का था, अगर कोई बाहरी आदमी वेनिस के किसी निवासी की जानबूझ के अनजाने में लेना चाहता है, द पार्टी अगेंस्ट द विच ही डज कंट्राइव, जिसके खिलाफ वो प्लॉट कर रहा है, किसके खिलाफ प्लॉट कर रहा था, एंटोनियो के खिलाफ। शैल सीज वन हाफ इज गुड, तो उसकी संपत्ति का द हाफ पार्ट ऑफ हिज एंटायर प्रॉपर्टी विल गो टू दैट पर्सन, मींस आधी संपत्ति एंटोनियो के पास आ जाएगी। द अदर हाफ कम्स टू द प्रिवी कॉफर ऑफ द स्टेट, प्रिवी कॉफर द पार्ट ऑफ द पब्लिक ट्रेजर, सेकेंड हाफ विल गो टू द पब्लिक ट्रेजर ऑफ द स्टेट, यानी उसकी पूरी प्रॉपर्टी चली जाएगी अगर ये जाहिर हो जाता है। और ये जाहिर हो गया कि तुम बदला लेना चाहते थे, इसलिए तुम इसकी जान लेना चाहते थे। एंड द ऑफेंडर लाइफ लाइज इन द मर्सी ऑफ द ड्यूक ओनली, और तुम्हारा जीवन जो है ड्यूक की दया पे ही निर्भर है, अगर तो ड्यूक माफ कर दे तो कर दे। आई से दाउ स्टैंड फॉर इट अपीयर बाय मैनिफेस्ट प्रोसीडिंग, सो आई से दैट दिस डेंजरस सिचुएशन, इट्स वेरी क्लियर एविडेंस दैट यू आर इन अ डेंजरस सिचुएशन। अब ये बिल्कुल साफ है कि तुम एक खतरनाक स्थिति में फंस गए हो। दैट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टू दाउ हैस्ट कंट्राइव अगेंस्ट द वेरी लाइफ, कि तुमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस आदमी के खिलाफ साजिश रची थी। द डेंजर फॉर्मली बाय मी रिहर्स, द डेंजर इज द पेनाल्टी हियर, अब पेनाल्टी ये है, मी रिहर्स मीन्स कोटेड फ्रॉम द लॉ ऑफ वेनिस, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेनिस यू हैव टू पे द पेनाल्टी, अब आपको पेनाल्टी देनी है लॉ के वेनिस के कानून के हिसाब से। अब यानी कि हर तरह से शायलॉक फंस चुका है। ड्यूक, अब सारा कुछ ड्यूक पे आ गया। ड्यूक, thou shall see the difference of a spirit, and now you will see the difference between us and you. Us means Christians and Jew. I pardon thy life before you have. I have already pardoned your life. मैं तो पहले ही माफ कर दिया, इससे पहले तुम मुझसे माफी मांगो, मैं have already pardoned you, मैं तो पहले ही माफ कर दिया। For half thy wealth it is Antonio, your half of the property is gone to Antonio, तुम्हारी आधी जागीर आधी संपत्ति एंटोनियो की हो गई। The other half comes to the general state, अदर दूसरा हाफ जो है वो स्टेट के पास आ गया। Which humbleness may drive onto a fine, and if you show humbleness we can reduce the fine, तो पेनाल्टी तुम पे लगनी, इसके बाद भी पेनाल्टी लगेगी, वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अगर तुम हम्बलनेस दिखाओ। Shylock, nay, take my life. Shylock was like furious.
ही वॉज स्पीचलेस। वो कहता है नो टेक, आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पार्डन नॉट दैट, इवन मुझे आपकी दया भी नहीं चाहिए, यू टेक माई हाउस, मेरा हाउस ले लो, व्हेन यू डू टेक द प्रॉप दैट डस सस्टेन माई हाउस, और जब मेरा हाउस लेना तो उसके पिलर्स भी निकाल लेना जिसमें मेरा हाउस रुका हुआ, ताकि मेरा हाउस पूरा गिर जाए। यू टेक माई लाइफ व्हेन यू डू टेक द मीन्स वेयर बाय आई लिव, एंड बिकॉज इफ़ यूल टेक द मीन्स, मैं आप वही जरिया ले लेंगे जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरी सारा पैसा ले लेंगे, तो मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं रह जाएगा, तो मैं अपने आप ही मर जाऊंगा। What mercy can you render him, Antonio? Now it was Portia's turn. वो कहती तुम इस पे क्या दया दिखाना चाहोगे एंटोनियो? एंटोनियो, so please my lord, the duke and all the court took it, the fine for 1/2 of his good. So I shall be pleased if duke and this court be pleased to remit the fine for confiscation of half of his wealth. जो आधा आप लोग इसकी wealth ले रहे हैं, जो स्टेट के पास है वो मत लीजिए, वो इसको दे दीजिए, और जो आधी मेरे पास है, आई एम कंटेंट सो ही विल लेट मी हैव द अदर हाफ इन यूज, और जो दूसरा हाफ है वो मैं अपने पास रखूंगा, टू रेंडर इट अपॉन हिज डेथ, और जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, ऑन टू द जेंटलमैन दैट लेटली स्टोल हिज डॉटर, आई विल गिव दैट मनी टू द जेंटलमैन हु हैज स्टोल हिज डॉटर, हु हैज मैरिड हिज डॉटर। जब इसके मरने के बाद हम लोग वो पैसा इसके दामाद को, यानी जिसने इसकी बेटी से शादी करी, उसको दे देंगे। टू थिंग्स प्रोवाइडेड, दो चीजें और हैं, दैट फॉर दिस फेवर ही प्रेजेंटली बिकम अ क्रिश्चियन एंड ही हैज टू चेंज हिज रिलीजन, फ्रॉम Jew he'll become a Christian, the other that he record a gift and he'll write a will here in the court of all if he dies possessed, and if he dies he'll write this will here only if he dies, all his wealth will be passed on to his son-in-law Lorenzo and his daughter। और ये यहाँ पे एक अपना वसीयतनामा भी लिखेगा कि अगर ये मर जाता है तो इसका सारा पैसा इसके दामाद को, बेटी को मिलेगा, दामाद लोरेंजो को मिलेगा। He shall do this or else I do recant, और अगर ये ऐसा ही करेगा, अगर ऐसा करता है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। शायलॉक कहता है I'm content, उसको लगता है आधी संपत्ति तो बच गई, ठीक है चलो, और बाकी आधी भी उसको मिल जाएगी, उसकी बेटी को, उसको, तो कहता है ठीक है। I pray you give me leave to go from here, I request you to give me leave, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। I am not well, send the deed after me, ये जो आप जो भी लिखा पड़ी मेरे बात आप घर भेज दीजिएगा, मैं कर लूँगा, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। इस तरह से शायलॉक वहाँ से चला जाता है। Portia, I humbly do desire your grace of pardon, now I humbly request to excuse me as well, मुझे भी आपसे प्रार्थना करते मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। I must away this night towards Padua, I want to go to Padua this night and it is meet I presently for, and for this I have to move out right now, मुझे आज ही पाडुआ जाना होगा, मुझे इस समय यहाँ से निकलना होगा। Duke, I am sorry that your leisure serves you not, I am sorry that you don't have spare time। Antonio, gratify this gentleman, gentleman वो पोर्शिया एक जेंटलमैन के रूप में ड्रेस्ड अप थी, तो रिवॉर्ड दिस जेंटलमैन, इसको प्रॉपर सम्मान दो, उपहार दो। फॉर इन माई माइंड यू आर मच बाउंड टू हिम बिकॉज यू आर मोर इन डेब्ट, तुम इसके ज़्यादा ऋणी हो क्योंकि इसने तुम्हारा जीवन बचाया। इस तरह से ड्यूक और सारे उसके अटेंडेंट वहाँ से चले जाते हैं। बसैनियो, मोस्ट वर्दी जेंटलमैन, आई एंड माई फ्रेंड हैव यू बाय योर विजडम, और वो कहता है, बसैनियो कह रहा है कि मोस्ट वर्दी जेंटलमैन, मेरे दोस्त, हम दोनों की जो जीवन है, आवर लाइफ इज सेव्ड बाय यू ओनली, हैव यू बाय योर विजडम, बिकॉज ऑफ योर विजडम यू हैव सेव्ड आवर लाइफ, been this day acquitted, and this we have seen this day when we both are released, in fact Antonio release हुआ है और हम लोग आज मिल पा रहे हैं, it's because of you हम लोग आज free हैं, of grievous penalty, of the severe penalty that could have been imposed on us in lieu whereof, in exchange, and I want to give you 3,000 ducats in exchange of saving our life, due on to the Jew, that was due on the Jew, we freely cope your courteous pain withal, and we are very thankful that the pain you have taken। अब हम चाहते हैं कि आप जो 3,000 डॉकेट्स हम लोग उसको देने वाले थे शायलॉक को, वो आप ले लें, और आप बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी परेशानी हम लोग के लिए उठाई। एंड स्टैंड इन डेप्थ ओवर एंड अबव इन लव एंड सर्विस टू योर एवरमोर, एंड इन एडिशन वी शैल ऑलवेज बी इन अ डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, हम लोग हमेशा आपके आभारी रहेंगे और आपको जब भी मौका मिलेगा हमें आपको आपके काम आएंगे।
Portia, he is well paid, that is well satisfied. He who is satisfied is well paid. मुझे मैं satisfy हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए. Portia, you press me far and therefore I will yield. और you are pressing me again, then I'll ask you, give me your gloves. मुझे अपने gloves दे दो. I will wear them for my sake. मैं तुम्हारे gloves ले लेती हूँ, मैं यही पहन लूँगी. उसको satisfy करने के लिए कहती है. And for your love I will take this ring. जब वो अपने gloves उतारता है तो उसके देखती हाथ में ring थी. वो ring वही थी जो Portia ने Bassanio को दी थी. And for your love, because तुम मुझे इतना प्यार कर रहे हो, इतना सम्मान दे रहे हो, I'll take this ring from you. मैं ये ring तुमसे लेना चाहती हूँ. Do not draw back. अरे तुम अपना हाथ पीछे क्यों कर? Why are you drawing back your hand? I will take no more. मैं इसके अलावा कुछ नहीं लूँगी. And you in love shall not deny me. And I'm sure that you are not going to deny me. मुझे विश्वास है तुम मुझे मना नहीं करोगे. Bassanio, this ring, अरे ये छोटी सी ring, तो it's of insignificant value. इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है. I will not shame myself to give you this, and I don't want to feel embarrassed to give you such a such a gift which is of no value. मैं तुम्हें ये गिफ्ट नहीं देना चाहता हूँ जिसकी तो कोई वैल्यू नहीं. इस रिंग की क्या वैल्यू है? I will have nothing else but only this. वो कहती मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल ये रिंग ही चाहिए. And now methinks I have a mind to, and now I feel that I have set my mind on this. मुझे लगता मैंने अपना दिमाग इसी पे केंद्रित कर दिया. मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ये रिंग चाहिए. अब वो एक उसकी योजना थी बसानियो को आगे परेशान करने की. Bassanio, good sir, this ring was given me by my wife, and when she put it on, she made me vow that I should neither sell nor give nor lose it. So this ring was given to me by my wife, and when she gave me the ring, she made me have a swear that I'll never part away from this ring. I will never give it, sell it or give it to anyone else. It will always remain with me. तो कहता है जब ये अंगूठी मेरी पत्नी ने मुझे दी थी तब उसने मुझे कसम दिलाई थी ना मैं इसको कभी खोऊंगा ना मैं कभी इसको कहीं और रखूंगा, ये हमेशा मेरे पास रहेगी. द एक्सक्यूज सर्व मेनी मैन टू सेव द गिफ्ट. तो कहते हैं इस तरह के एक्सक्यूज बहुत सारे लोग देते हैं अपना सामान बचाने के लिए. एंड इफ योर वाइफ बी नॉट अ मैड वुमन, इफ योर वाइफ इज नॉट मैड, तुम्हारी वाइफ इतनी पागल नहीं होगी. एंड नो हाउ वेल आई हैव डिजर्व द रिंग, उसको मालूम होगा कि मैं इस रिंग को कितना डिजर्व करती हूँ. एंड शी वुड नॉट होल्ड एनिमी फॉर एवर, एंड शी विल नॉट बी योर एनिमी फॉर एवर. हमेशा तुम्हारी दुश्मन थोड़ी बनी रहेगी. फॉर गिविंग इट टू मी, वेल पीस बी विद यू. और वो कभी ना कभी तुम्हारे साथ तो शांति कर ही लेगी, तुम लोग का समझौता हो ही जाएगा. इस तरह से पोर्शिया और नेरिसा वहाँ से चली जाती हैं. एंटोनियो, माय लॉर्ड बसानियो, लेट हिम हैव द रिंग. एंटोनियो कहता है बसानियो उसको रिंग दे दो. लेट हिज डिजर्विंग्स एंड माई लव विद ऑल, लेट द कंसिडरेशन फॉर हिज deserving, I feel what she feel that she deserves for the ring, and along with this my love is also there, be valued against your wife commandment, and this could outweigh the love of your wife and my love for you. तो ये अंगूठी तुम उसको दे दो और ये शायद इस तरह से हम लोग का ऋण उतर जाएगा. बसानियो, गो ग्रेशियानो, रन एंड ओवरटेक, जाओ दौड़ के जाओ ग्रेशियानो और ये अंगूठी उसको दे आओ. गिव हिम द रिंग एंड ब्रिंग हिम इफ दाओ कांस्ट, और उसको रिंग भी दे दो और उससे ये पूछ लो कि क्या वो आज रात में एंटोनियो के घर आ सकती है, जल्दी जाओ, सॉरी आ सकता है, आई एम सॉरी. इस तरह से ग्रेशियानो वहां चला जाता है. एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस scene 1. It was a very long and a lengthy scene, and now only scene 2 is left in act 4. We'll finish this scene also in the next video. Till then, thank you, goodbye. Subscribe the channel. The only thing you don't do is that you watch the video, you do everything, but you don't subscribe the channel. Press the bell icon to get the latest video. Thank you.